Okay, I think we have covered all like SOP, POS, form, फिर K-map, don't K, two variable map. Okay, and after that, we have to just now start combinational circuits. VM method is already covered. Now combinational part. Okay, so it is a first combinational circuit. It is a multiplexer. Combinational circuit is nothing but consist of logic gates, and by combining this logic gate, it like produce one boolean function which is used to like add a number or subtract number. So it is called as a combinational circuit. So first combinational circuit, it is a multiplexer. So multiplexer is a digital circuit that has multiple inputs and single output. Of course, what is the name? Multiplexer. So numbers of signal को क्या करेगा? Multiplex. But in this case, note it is a multiply. Okay. It simply collect all multiple inputs and gives the only single output. And the selection of one of an inputs is done by select inputs. This multiplexer actually it is a consist of input, output and selection line. Depend upon selection line, particular and input enter into multiplexer and we can find the output for this particular input. So it is a one output selected at a time and also known as a data selector also. Okay, another name of multiplexer, it is a data selector. Multiplexer has an input data, multiple numbers of inputs, one output and selection inputs, m selection input with 2 raised to m is equal to n. So what is the meaning of m and n? n एक्चुअल में क्या है आपके इनपुट्स है and m क्या है? It is selection inputs. Depend upon this selection line or selection input, particular input means enter into your multiplexer. Okay, so if I having a 4 data or like 4 data inputs, so 2 raised to m is equal to क्या है मेरे पास अब 4, तो of course m की वैल्यू क्या होगी 2. Okay, so to represent a 4 input we have required how many selection line? m means 2. अगर मेरे पास 4 inputs है so n is equal to 4. So as per equation 2 raised to m is equal to 4. So what is the value of m? 2. So to represent a 4 input data, we have to require the 2 selection line. Of course, 2 selection line which gives the all 4 combination like 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Okay, if 0, 0, so first input like enter होगा, फिर 0, 1 तो second input enter होगा, 1, 0 so third होगा and 1, 1 so 4 होगा. So जितने भी आपके inputs है is equal to 2 raised to m. ओके उतनी आपको सिलेक्शन लाइन लेनी है. ओके इट इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर consist of like selection inputs. In this diagram it is like represented numbers of inputs because specific आपने नहीं दिया है. इट इज ए n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, और यहाँ पे सारे डेटा इनपुट्स है d1 up to dn minus 1. Same selection line, it is a s0 to s minus 1 and y output, and this extra input is the enable input. Okay, when this enable input 1, then and then our input enter into multiplexer and gives some output. जब तक आपका जो enable है वो एक्टिव नहीं होता तब तक यहाँ पे जो भी डेटा है वो इनसाइड नहीं जाएगा. ओके, सो इट इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर. नाउ क्या क्या टाइप्स है मल्टीप्लेक्सर के? इट इज ए 2 क्रॉस 1. 2 cross 1 means 2 inputs and 1 output. Okay, 2 to 1 का meaning है 2 input and 1 output. So how many selection line is required? 2. So 2 raised to m is equal to n and n की वैल्यू क्या है 2. So 2 raised to क्या होना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू 2 रहे? 0. 2 raised to 0 का मतलब क्या है? सॉरी 2 raised to 1. So 2 raised to 1 is equal to क्या होगा 2. तो 1 सिलेक्शन लाइन चाहिए. ऑफकोर्स आपको वैसे भी पता चल जाएगा आप 1 सिलेक्शन लाइन रह रहे हैं. ठीक है, सो इट गिव्स द 2 पॉसिबल वैल्यू आइदर 0 और 1. So when it is 0, first input is given, and when it is selection line input is 1, एक्चुअल में आपका जो इनपुट्स है वो सेकंड इनपुट एंटर होगा. ठीक है, तो डिपेंड अपॉन सिलेक्शन लाइन 1 है मतलब उसके 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और हमें 2
इनपुट देना है तो 1 सिलेक्शन लाइन इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ 4 इनपुट देने हैं तो ऑफ कोर्स 2 मींस 4 होता है, 2 सिलेक्शन लाइन इज रिक्वायर्ड. 8 क्रॉस 1 so 2 मींस 8 तो 3 सिलेक्शन लाइन इज रिक्वायर्ड. and 16 cross 1 so 2 means 16 so 4 selection line is required. So these are the types of multiplexer: 2 cross 1, 4 cross 1, 8 cross 1 and 16 cross 1. Okay, now we have to just like draw the logic diagram or block diagram, truth table, equation. From this equation we can design the logic diagram. Total 4 thing आपको यहाँ पर represent करनी है: block diagram, truth table, function and logic diagram. Okay, so it is a 2 to 1 or 2 cross 1 multiplexer. Okay, so this 2 cross 1 means क्या है? 2 inputs है and 1 output. So here मैंने क्या कौन सा दिया? D0 D1. Why it is output? 2 cross 1 multiplexer and 1 selection line is given. यहाँ पे कितनी selection line दी? Only 1. जब 0 होगा तो D0 एंटर होगा, जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 होगी तो D1 एंटर होगा. इट इज वेरी इजी. एंड अनेबल को भी हमने एक्टिव ही रखा है तो उसका यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा. ओके, सो इन द ट्रूथ टेबल एज यू नो इफ S इज इक्वल टू 0 सिलेक्शन लाइन सो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? D0. वाई आउटपुट D0? बिकॉज कौन सा इनपुट एंटर हो रहा है? D0. और अभी यहाँ पे कोई भी सर्किट नहीं, डायरेक्टली वो बफर ही है, मतलब D0 यहाँ पे एंटर होगा तो Y में क्या मिलेगा? D0. सेम अगर सिलेक्शन लाइन इज 1 सो योर आउटपुट इज D1 इट इज सिलेक्टेड एंड योर आउटपुट इज ए D1. ओके, नाउ वी हैव टू डिजाइन द इक्वेशन. इक्वेशन बहुत इजी है. Y इज इक्वल टू क्या होगा? S की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0. सो वी कैन राइट D0 इंटू S डैश प्लस D1 इंटू S. ओके, y is equal to like truth table में से मुझे boolean equation write करनी है and from boolean equation we can draw the logic diagram. Okay, so y is equal to what is your equation? D0 S dash plus D1 S. It is your equation. I think this one. Y is equal to D0 S dash and D1 S. Okay, when of course when S is equal to 0, S की वैल्यू क्या अगर मैं लेती हूँ 0 तो ये क्या होगा? 1. ठीक है, तो ऑफ कोर्स गेट 1 अनेबल होगा एंड गेट 2 क्या होगा? डिसेबल होगा. S इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो क्या होगा? S इज इक्वल टू 1 मतलब ये डिसेबल होगा और ये क्या होगा? अनेबल होगा. ठीक है, सो y इज इक्वल टू D0, y इज इक्वल टू D1 डिपेंड अपॉन सिलेक्शन लाइन. उसका डायग्राम ड्रॉ करना था, आप कर देना. आई थिंक यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया है. डायग्राम में सिंपली क्या आएगा? जो आपको एंड गेट बोला है ना वही आएगा. यहाँ पे 2 आपको एंड गेट लेना है, 1 for D0 S dash and 1 for D1 S. आफ्टर दैट दोनों का क्या करना है? एडिशन. तो 2 एंड गेट का आउटपुट कहाँ पे देना है? 1 और गेट में, विच गिव यू y. इस तरह से इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर देना. ठीक है, व्हेन S इज इक्वल टू 0 तो ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड गेट अनेबल होगा एंड वी कैन फाइंड D0. When S is equal to 1 the second AND gate enable होगा and we can find D1. Okay, now 4 cross 1 multiplexer. Okay, 4 cross 1 means क्या है? S1 S0 2 inputs, not 2 input नहीं, 2 selection line. So 2 selection line and then how many possible combination for S1 and S0? 0 0 0 1 1 1 1 0 means total 4 combination. That's why we just take here 4 inputs. When 0 0 तो I0 select होगा, 0 1 so I1 select होगा, 1 0 so I2 select होगा and if 1 1 then I3 select होगा. In this way you can an enable signal is given again. In this way we can like derive the truth table this time. Like S1 S0 ये Y है मेरा, 0 0 तो कौन सा select होगा? I0, 0 1 so I1, 1 0 तो I2 and 1 1 तो I3. ओके, ये कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो. ओके, मैं लाइक 1 1 पे भी I0 को एक्टिव कर सकती हूँ. डिपेंड, आपको जो भी कॉम्बिनेशन लेने हैं आप ले सकते हैं S1 S0. ओके, बट ऑफ कोर्स वो भी इनबिल्ट कनेक्शन ही होता है, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको ले रहे हैं तब कोई भी कॉम्बिनेशन पे लिख सकते हैं उसको. सेम इसकी इक्वेशन जैसे आगे की थी, 4 कॉम्बिनेशन है तो 4 टर्म बनेगी. y इज इक्वल टू क्या आएगा? फर्स्ट I0 S0 डैश S1 डैश प्लस I1 S0 S1 डैश प्लस I2 S0 डैश S1 प्लस I3 S0 S1. ओके, इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए. चलिए,
ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस बुलियन फंक्शन। डायग्राम में कितने एंड गेट आएंगे इसमें? हाउ मेनी एंड गेट? We have to draw the logic diagram of this function. So how many gates are required? बताइए चलिए, कितने एंड गेट चाहिए? जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है उतने गेट एंड गेट चाहिए मुझे। एंड फॉर एडिशन मुझे एक और गेट चाहिए। चलो बताओ कितने एंड गेट की रिक्वायरमेंट है टू रिप्रेजेंट y इन योर लॉजिक डायग्राम फॉर्म? सब ऑन करके चले गए लेक्चर की क्या है? नो आंसर? हेलो, 8 एंड गेट की रिक्वायरमेंट है। कैसे? ये मुझे S1 S0 I0 को मल्टीप्लाई करना है तो तीनों के इनपुट एक ही एंड गेट में देने हैं। सेम इसको मल्टीप्लाई करना है तो तीनों के इनपुट एक ही एंड गेट में देने हैं। सेम यहाँ पे एक ही एंड गेट में देना है और यहाँ पे एक ही एंड गेट में देना है। से एंड गेट कितने हो गए बताओ? लॉजिक फंक्शन से डायग्राम बनाना तो एटलीस्ट अब आना चाहिए, आगे भी आ चुका है। हाउ मेनी एंड गेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ y? मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो कितने एंड गेट आएंगे? 4 एंड गेट की रिक्वायरमेंट, 1 for this, 1 for this, 1 for this and 1 for this, total 4 एंड गेट. And addition of all these 4 gate, we have to require a 1 OR gate. एक और गेट से इन चारों का क्या करना है? एडिशन, विच गिव यू द y. यहाँ पे देखो उसका नेक्स्ट जो है बहुत इजी है। यहाँ पे देखो सिंपली मैंने 4 एंड गेट लिए है। ओके, सिलेक्शन लाइन यहाँ पे कॉमन ले ली है और अनेबल इनपुट यहाँ पे सब में मैंने दिया है। अब बाई चांस अनेबल भूल भी जाते फिर भी चलेगा, बट इनपुट एंड S1 S0 होने चाहिए। तो यहाँ पे सब में एक तो अनेबल सिग्नल दे दिया तो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद S1 S0 की वैल्यू जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ले लेनी है। फर्स्ट टर्म जैसे I3 लिया है तो I3 में कौन सी वाली टर्म है? S1 S0 I3। तो S1 को एज इट इज देना है, S1 S0 और I3, मतलब एक एंड गेट बन गया, ठीक है, एक अनेबल आ गया है। सेम यहाँ पे I2, तो I2 में क्या है? I2 S1 की वैल्यू एज इट इज देनी है, S0 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करके देनी, मीन्स नॉट गेट थ्रू देनी है। तो यहाँ पे देखो I2 दिया है, S1 को एज इट इज दिया है, ओनली S0 को नॉट गेट अप्लाई करके दिया है क्योंकि उसका डैश है, दैट्स व्हाई, एंड अगेन अनेबल। इस तरह से बाकी दोनों टर्म के लिए एंड गेट ड्रॉ करना है, सबका एडिशन थ्रू 1 और गेट विच गिव यू y। बहुत इजी है, बट फर्स्ट में पता होना चाहिए किसी का भी लॉजिक डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है कोई भी फंक्शन का। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, ओके ओके। सेम आपको अगर लाइक I1 की टर्म कौन सी है? दिस वन, उसको अगर बनाना है लॉजिक डायग्राम फॉर्म में तो क्या होगा? S1 को आपको कॉम्प्लीमेंट करके देना है, S0 को एज इट इज देना है एंड I1 को एज इट इज देना है, ठीक है। तो इसमें I1 को एज इट इज दिया, S1 को कॉम्प्लीमेंट करके दिया, S0 को एज इट इज दिया एंड अनेबल दिया। सेम फॉर लास्ट, उसमें दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, S1 डैश S0 डैश I0, और बाकी में सबका एडिशन करना। सो इट इज अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट। आपको ये पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, इक्वेशन डिराइव करनी है और उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। नाउ 8x1, 8x1 ऑफ कोर्स 8 इनपुट्स है, तो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन आर रिक्वायर्ड? 3।
8 है, so 2 to 3 means 8, तो 3 सिलेक्शन लाइन्स आर रिक्वायर्ड. सो सिंपली 8 इनपुट्स दिए हैं, D0 to D7, 3 सिलेक्शन लाइन है एंड 1 इट इज आउटपुट y. आप यहाँ पे अनेबल चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इज ओके. ठीक है. सेम यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, S1 S2 S0 के 2 to 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन आएंगे. ओके. एंड सीक्वेंस में सबको 1 by 1 सिलेक्ट करना है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7. अब इसकी इक्वेशन क्या होगी y की, D0 S0 dash S1 dash S2 dash plus D1 S0 S1 dash S2 dash plus D2 S0 dash S1 S2 dash plus D3 S1 S0 S2 dash plus D4 S0 dash S1 dash S2 plus D5 S0 S1 dash S2 plus D6 S0 dash S1 S2 D7 S0 S1 and S2. टोटल 8 टर्म्स आएगी. सो हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, चलिए अब बता दीजिए फास्ट. 8 कॉम्बिनेशन है तो 8 टर्म मुझे मिलेगी फंक्शन में. सो मुझे कितने एंड गेट चाहिए सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड. ओके. यहाँ पे सर्किट बनाइए, दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक आई थिंक, एक मिनट. S1 dash S0 dash Y0, ओके नोटिफिकेशन अलग ली है, दैट्स वाई. यहाँ पे क्या लिया आपको बता देती हूँ. S1 S0 S0 की S1 सॉरी S3 S2 सॉरी S2 S1 S0 की जगह पे ABC लिया हुआ. सिलेक्शन लाइन क्या ली है यहाँ पे, ABC. आई थिंक मैंने कोई डिफरेंट सर्किट से लिखा, दैट्स वाई डिफरेंट आया. ठीक है. ABC वो सिलेक्शन लाइन है एंड ये इनपुट्स थे ना D0 D1, उसकी जगह पे क्या है I0 I1 अप टू I7. ओके. सबका इंडिविजुअल एंड गेट्स है और सबको क्या करना है, एडिशन करना है. आप यहाँ पे क्या ले लेना, S3 S2 S1 और यहाँ पे क्या आएगा D0 D1 D2 अप टू D7. ओके. आपका जो डायग्राम है ना उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर लेना. यहाँ पे सिलेक्शन लाइन S2 S1 S0 की जगह पे ABC लिया है और सारे इनपुट्स को I थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, अदरवाइज डायग्राम पूरा सेम आएगा. So you just replace this ABC by S2 S1 S0 and I0 by D as per our truth table. Okay. Any doubt in this? So okay, we can move forward. Hello. Any doubt in this? Next application of multiplexer. The first application, it is the logic function generation. It is a very important application of multiplexer, and by using this application GTU ask many example कि generate this function using multiplexer. आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है, ऐसा बोलेंगे कि like express this function using multiplexer. So logic function generation, it is a very important application of multiplexer. डेटा सिलेक्शन, सो ऑफ कोर्स डेटा सिलेक्टर तो है ही वो. डेटा राउटिंग, डेटा को आपको अगर राउटिंग करना है कहीं पे तो उसका यूज हो सकता है. ऑपरेशन सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस में अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑफ कोर्स एज पर द सिलेक्शन लाइन वो सीक्वेंस में जाएगा ऑपरेशन. पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, वेवफॉर्म जनरेशन, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, इट इज ए लॉजिक फंक्शन जनरेटर विच इज यूज्ड थ्रू आउट दिस चैप्टर. जैसे आपको ये दे दिया, चलो इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, और ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ये कंपलसरी है. इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर, एंड फंक्शन दिया है आपको XYZ इज इक्वल टू समेशन M 0 to 35 fxyz समेशन M 0 to 35. ठीक है. तो यहाँ पे देखो XYZ कितने वेरिएबल्स है, 3. ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे S2 S1 S0 क्या ले लिए, एक्चुअल में XYZ कंसिडर एज S2 S1 S0 मीन्स कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 वेरिएबल मीन्स 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ठीक है. सो फॉर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी हैव टू फाइंड f, बट आपको ऑलरेडी f दे दिया है. क्या दिया है, कौन से मीन टर्म दी है, 0 2 3 5, मतलब 0 पे 1 है,
फिर ये क्या है 0, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 पे 1 है, सो आई जस्ट प्लेस 1। फिर 2 पे 1 है, फिर 3 पे है एंड 5 पे। तो यहाँ पे बहुत इजी है, सिंपल ही ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और एफ की वैल्यू आपको कहाँ कहाँ पे 1 रखनी है, जिसके लिए आपको मीन टर्म दी है वहां पे 1 1 प्लस कर देना। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो उस जो फंक्शन है उसका मैंने फर्स्ट क्या बनाया, टेबल। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो सारी वैल्यू है उसको कैसे लिया है, यहाँ पे इट इज अ D0, इट इज अ D1, इट इज अ D2, इट इज अ D3, इट इज अ D4, इट इज अ D5, इट इज अ D6 एंड इट इज अ D7। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल S1 S2 S1 S0 क्या ले लिया मैंने, XYZ। उसके थ्रू जो भी जनरेट होगा वो ऑफकोर्स मेरा क्या है, F। बट सिलेक्शन लाइन थ्रू जो जनरेट हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, मेरे इनपुट्स ही है, बट इनपुट्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, आउटपुट ऑफ दिस टेबल एंड इनपुट ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर। तो मुझे सिंपली इनपुट्स देने हैं जो भी यहाँ पे मिले हैं। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर चला गया, D0 नीचे आ गया, D1 D2। आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये सारे क्या है, S1 S0 सॉरी S2 S1 एंड S0, इस तरह से है। इसको थोड़ा उसका स्क्वायर बॉक्स है ना वो थोड़ा वो हो गया, इसीलिए S1 है, ये क्या है S0 है, और ये क्या है S2। ठीक है, सेम फॉर ये क्या है D0 D1 D2 अप टू कहाँ तक जाएगा, वो D7 है। ओके, तो S0 S1 S2, S2 क्या लिया है X, S1 क्या लिया है Y, S0 क्या लिया है Z। ओके, नाउ this F, it is nothing but input of multiplexer, so we can just consider it is a D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 and D7। so what is the value of D0, 1। तो D0 में क्या देना है, 1। फिर D1 में क्या देना है, 0। D2 में क्या देना है, 1। D3 में क्या देना है, 1। D4 में क्या देना है, 0। D5 में क्या देना है, 1। D6 में क्या देना है, 0 एंड D7 में क्या देना है, 0। सिंपली इफ यू कंसीडर आउटपुट इज इक्वल टू F, आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा यहाँ पे, ओके ये F और ये F दोनों सेम नहीं है, वो याद रखना, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिया D0 D1 D2। हाँ, बट आप ऐसा लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो F when particular combination, yes, when particular combination is generated we can find value of F from these inputs। ओके, तो कोई भी फंक्शन दिया है उसको आप 8x1 मल्टीप्लेक्सर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D0 D7 वो फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू सिंपली आपको यहाँ पे दे देनी है। ओके, एंड डिपेंड अपॉन सिलेक्शन लाइन वो सिलेक्शन होता रहेगा। सो आउटपुट इज इक्वल टू क्या रहेगा, F। सो इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइक एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन जनरेटर। कैसे जनरेट करना है वही बताया, मैं डायरेक्टली आपको टेबल में से ही बता दूंगी। ये सिंपली आपको बताया गया है कि कैसे उसको कंसीडर करना है लॉजिक फंक्शन को, जैसे आपको यहाँ पे एक दिया है। ओके, आपको एक एग्जांपल दिया है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, यूजिंग, आपको ये आगे का यूज करना तो आप कर सकते हैं, बट जो डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने डायरेक्टली आपको टेबल इसमें से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन है वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो एक बार 2 स्लाइड देख लेना। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल थ्रू कैसे करना है, जो एग्जाम्पल में किया वही वहां पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, मीन टर्म कितनी दी है, 0 1 2 3 4 5 11 14 एंड 15, तो वो तो 15 तक जा रहा है, और आपको यहाँ पे बोला 8x1। सो 8x1 आप कब बना सकते हैं एक्चुअल में, जब आपके पास 8 इनपुट्स हो। 8 इनपुट का मतलब कितनी सिलेक्शन लाइन, 3 सिलेक्शन लाइन, मीन्स ओनली 3 वेरिएबल थ्रू बनाना है, बट यहाँ पे तो मुझे 4 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है। 3 वेरिएबल मतलब ये सारी मीन टर्म कहाँ तक जानी चाहिए, ओनली अप टू 0 to 7, बट यहाँ पे तो 0 to 15 तक है। तो 15 कब आएगा, व्हेन वी कंसीडर 2⁴ मीन्स 16। तो एक्चुअल में ये फंक्शन आपको दिया है ना, वो 4 वेरिएबल का फंक्शन है, वो आपको मीन टर्म देख के पता चल जाना चाहिए। मीन टर्म अगर 0 to 7 आपको दी होती मीन्स वो 3 वेरिएबल का फंक्शन होता, बिकॉज 2⁵ मीन्स 8, लेकिन मीन टर्म आपको कहाँ तक दी है, 15, सो 4 वेरिएबल का फंक्शन है, बिकॉज 2⁴ कितना होगा, 16। ओके, तो 4 वेरिएबल का ये फंक्शन आपको दिया,
देन बट आपको क्या बोला है कि 8 क्रॉस 1 थ्रू करना है। एक्चुअल में तो अगर मुझे 4 वेरिएबल का फंक्शन दिया है, सो 4 सिलेक्शन लाइन इज रिक्वायर्ड। मीन्स 16 आपके इनपुट्स है, तो 2⁴ मीन्स 16, मतलब कितनी सिलेक्शन लाइन चाहिए मुझे? 16, सॉरी सिलेक्शन लाइन कितनी चाहिए? 4। ओके, एंड इनपुट्स कितने होंगे उसके? 16, बट तो इट इज अ 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। बट मुझे किससे बोला है? 8 क्रॉस 1 से। तो कैसे करना है आपको कि फंक्शन गिवन फॉर द 16 क्रॉस 1 बट वी हैव टू इंप्लीमेंट द फंक्शन बाय यूजिंग 8 क्रॉस 1। तो कैसे करना है आपको? देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल को, जैसे हम उसमें एंटर्ड वेरिएबल कंसीडर करते थे ना एमईवी में, सेम लास्ट जो डी है ना ABCD में से डी, उसको एंटर्ड कंसीडर कर लेना है। वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। उसको सिलेक्शन लाइन में कंसीडर नहीं करना है। एक्चुअल में तो ABCD मतलब सिलेक्शन लाइन 4 होनी चाहिए, but to get a 8 cross 1 multiplexer only 3 selection line is required। तो D एक एक्स्ट्रा हुआ आपके पास, तो D को एज ए एंटर्ड यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो नाउ आपको 16 कॉम्बिनेशन ही लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं? ABCD के 16 कॉम्बिनेशन आपको लिख ही देने हैं, उसके बाद सब करना है आपको, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो। तो 16 कॉम्बिनेशन 2⁴ मीन 16। सो क्या करना है? फर्स्ट 8 0, उसके बाद 8 1, फिर 4 0 4 1, 4 0 4 1, फिर क्या होगा? 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपको इसमें दो दो के पेयर बना दे, सेक्शन बना देना है दो दो का। यहाँ पे देखो ABC दोनों सेम है, तो हम उसका एक सेक्शन बना देंगे। डी का भी नहीं सोचना है बिकॉज उसको एंटर करना है। फिर क्या है? 0 0 1 0 0 1 दोनों सेम है ABC की वैल्यू, उसको सेक्शन में डिवाइड करना है। सेम फॉर बाकी सबको सेक्शन में डिवाइड करना, 2 2 के सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या है? 0 फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, और इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या है? 1। मतलब ABC की वैल्यू तो फिक्स है, बट डी की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, एंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी एफ की वैल्यू क्या है? 1। मीन्स डी की वैल्यू आइदर 0 हो या 1 है। एफ की वैल्यू स्टेबल है, क्या है? 1। सो योर एफ इज इक्वल टू 1। सेम फॉर हियर, डी की वैल्यू आइदर 0 हो या 1 हो, एफ इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 है या 1 है, तो यहाँ पे 1 0। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ एंड डी? कौन बताएगा? चलो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मुझे लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड डी? कुछ सिमिलरिटी दिख रही है दोनों में। एफ को हम डी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू डी की क्या वैल्यू लिखूंगी तो मुझे डी में से एफ मिलेगा? जस्ट थिंक, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब तो बता दीजिए। F is equal to D complement। यस, इट इज F इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअल में? F इज इक्वल टू डी डैश आएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। F इज इक्वल टू क्या आएगा? डी डैश। आई थिंक वो है, लेकिन पूरा स्क्रीन कर रही हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा। ओके, F इज इक्वल टू क्या है? डी डैश। ओके, नाउ यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, बिकॉज डी की वैल्यू 0 है या 1 है, बट एफ की वैल्यू तो फिक्स है, इट इज 0। सेम यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सेम यहाँ पे क्या आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे क्या आएगा? 0, और सेम यहाँ पे क्या आएगा? 1। अगर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर बाई चांस दोनों की वैल्यू सेम है कि 0 1, जैसे यहाँ पे था 0 1 एंड 1 0, नहीं ऐसी वैल्यू है कि 0 1 एंड 0 1, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? डी आएगा। तो डी है ना, वो एंटर्ड हो रहा है इनपुट में, दैट्स वाई डी को नहीं लेना है। आपको 8 क्रॉस 1 से बोला है। एक्चुअल में आपका जो फंक्शन दिया है वो 4 वेरिएबल का है। ठीक है, आपको जो फंक्शन दिया है वो कितने वेरिएबल का है? 4 वेरिएबल का। कैसे पता चलेगा वो कि कितनी मिन टर्म दी है? 0 to 15 तक, दैट्स वाई 2⁴ कितना होता है? 16। सो 0 to 15 की मिन टर्म्स कवर है। सो 4 वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब 4 सिलेक्शन लाइन इज रिक्वायर्ड। बट कब रिक्वायर्ड है? जब मैं 16 क्रॉस 1 का बनाऊं। तो मुझे 8 क्रॉस 1 का चाहिए, तो उसके लिए मुझे सिर्फ 3 सिलेक्शन लाइन चाहिए। तो 3 सिलेक्शन लाइन में यूज करूंगी एंड डी को एज ए एंटर्ड कंसीडर करूंगी। तो अब देखिए आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे? 16 नहीं मिलेंगे। अब दो दो की पेयर मैंने बनाई थी ना, दो दो के सेक्शन, तो हाफ हो जाएंगे, 8 मिलेंगे मुझे। 0
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। सो बस अब उसके बाद तो सिंपल है, जैसे आगे किया था। S2, S1, S0 पे ABC दे देना है एंड D0, D7 पे जो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हुई वो दे देनी है। वो आपको क्या देगा? आउटपुट है। ओके, इट इज ए क्वाइट ट्रिकी, बट इस टाइप के एग्जांपल आपको 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं। 4 वेरिएबल का फंक्शन दिया है तो ऑफकोर्स आप 16 क्रॉस 1 से बना सकते हैं, बट आपको क्या बोला है कि 8 क्रॉस 1 से बनाना है। तो 3 वेरिएबल को सिलेक्शन लाइन लेना है, एस डी को एज ए एंटर ले लेना है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? हेलो, any doubt in this? Okay, ओके, ये मैंने अपनी बुक से एग्जांपल लिए हुए हैं। आई थिंक मैंने मोरिस मेनो से ही लिया हुआ है बुक में, बट मेरी नोट्स में से एग्जांपल मैंने लिया है। देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे फंक्शन f इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन डिजाइन करना था a क्रॉस b क्रॉस नहीं है, x और है। मुझे फंक्शन क्या दिया है कि डिजाइन f इज इक्वल टू a x और b x और c using 8 cross 1 multiplexer. What is my question? Design f is equal to a x or b x or c using 8 cross 1 multiplexer. f आपको ऑलरेडी दे दिया, so now it's very easy. abc आपकी क्या होगी? सिलेक्शन लाइन abc. so 8 कॉम्बिनेशन, तो 8 कॉम्बिनेशन उसकी वैल्यू मिली है, so it is nothing. ओके, a b and c का XOR करना है तो दिस टाइप की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, इट इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो D0 to D7 में सारी वैल्यू दे देनी है। मैंने दो वैल्यू यहीं पे ले ली है 1 and 0, तो सबको डायरेक्टली मुझे एक्सटेंड ही करना है, लाइक D0 को देना है या फिर D1 को देना है। सो इट इज़ वेरी इजी। नॉर्मली ये 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नॉर्मली आपके क्वेश्चन 3, 4, 7 के होते हैं, सो 3 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये इजी है। डायरेक्टली फंक्शन दिया है, 3 वेरिएबल है, विच टेक इज लाइक सिलेक्शन वेरिएबल, फाइंड द f विच इज योर इनपुट्स D0 to D7 एंड गिवन इनटू 8 cross 1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, नाउ आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। Implement the following function using 8 cross 1 multiplexer. f x y z is equal to summation m 0 to 3 5. ओके, 3 वेरिएबल दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है। आपको 8 क्रॉस 1 बोला है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है कि 2⁻³ मीन्स कितना होता है 8। सो 0 2 3 5 वो 8 कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। मतलब मुझे 3 वेरिएबल ही दिए है, अगर नहीं दिए होते तो, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिए है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को कैसे लेना है? एज ए S2, S1, S0। कहाँ कहाँ पे f की वैल्यू 1 रखनी है आपको ऑलरेडी दिया है। कहाँ पे? 0 पे, 2 पे, 3 पे एंड 5 पे। बस इसके बाद तो इजी है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू दे देनी है S0, S1, S2, XYZ एंड D0 to D7 जो यहाँ पे वैल्यू है वो सारी देने हैं विच गिव यू द y. So this is generate a logic function using multiplexer. It is very easy but concept clear होना चाहिए। जैसे आपको ये दिया है using 4 cross 1 multiplexer to implement the logic function. Now how many variable is given? ABC. How many variable are given? ABC. 3 selection line, 8 combination, so 8 cross 1 multiplexer से बनेगा ये। बट मुझे क्या बोला है? यूजिंग अ 4 cross 1 multiplexer से बनाई। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बोला था ABC आपको ले लेना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद S1 S0 को एज ए AB लेना है और दो की सेक्शन बना देना है। AB की वैल्यू यहाँ दोनों जगह पे सेम है तो 1 सेक्शन, यहाँ पे सेम है 1 सेक्शन एंड 3rd सेक्शन। टोटल 4 सेक्शन में वो डिवाइड होगा विच गिव यू द 4 इनपुट, सो वी कैन डिजाइन अ 4 cross 1 मल्टीप्लेक्सर। सो नाउ F कहाँ कहाँ पे आपको 1 बोला है वो भी लिख देना है। एक क्या कहाँ पे है? 1 पे, दूसरा 2 पे, फिर 4 पे एंड 7 पे। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन f एंड c बिकॉज c को हम एंटर्ड कर रहे हैं। तो f इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में c की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू c। ओके, सेम 4 यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन f एंड c? कॉम्प्लीमेंट। सो f इज इक्वल टू c डैश। सेम फॉर यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, सो इट इज c डैश, और यहाँ पे दोनों सेम है सो इट इज c।
तो सिंपली S0 S1 में भी देना है एंड D0 D1 D2 D3 में क्या देना है आपको, D0 में C जाएगा, D1 में C डैश जाएगा, D2 में भी C डैश जाएगा एंड D3 में ओनली C जाएगा एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके ओके, नाउ आपको एक फंक्शन दिया हुआ है नाउ, बट अगेन वेरिएबल कितने दिए हैं, 3। इम्प्लीमेंट द लॉजिक फंक्शन एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डैश सी यूजिंग अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके अंडरस्टैंड, आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर का बोला है बट मुझे वेरिएबल कितने दिए, 3, मीन्स एक्चुअल में तो ये 8x1 से बनेगा बट मुझे 4x1 का बोला है। सो ए बी को ऐसे सिलेक्शन लाइन लेना है, सी को ऐसे एंटर्ड लेना है एंड जैसे आगे करते थे सेम ही करना है, बट आपको एक फंक्शन दिया तो कहाँ कहाँ पे वन है कैसे पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैनोनिकल फॉर्म में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है क्योंकि इसमें सी मिसिंग है और इसमें ए मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई विथ सी प्लस सी डैश, मल्टीप्लाई विथ ए प्लस ए डैश, तो आपको 4 टर्म मिलेगी। ओके, मल्टीप्लाई विथ सी प्लस सी डैश, तो ए बी सी एंड ए बी सी डैश, multiply with a plus a dash, so it is a dash b dash c and a b dash c, 4 टर्म मिल गई। now find the decimal value of this 4 टर्म। चलो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 1 है, बताओ। assume 2 raised to 0 into 1, 2 raised to 1 into 1, 2 raised to 2 into 1। चलिए ए बी सी assume 1 1 1, तो 1 1 1 का डेसिमल क्या होता है, सेवन। yes it is 7। 2 raised to 0 into 1 means 1, 2 raised to 1 means 1 into 1 means 2, so 1 plus 2 plus 2 raised to 2 into 1 तो 4, तो 4 plus 2 plus 1, so it is 7। now what about this, तो एक टर्म कौन सी आई, 7 मीन टर्म। now a b c dash, so it is a 1 1 0, क्या डेसिमल वैल्यू आएगी 1 1 0 की, 6। इट इज 6। उसके बाद 0 0 1, 1। 1 and a b dash c, so it is a 1 0 1, 5। 5। सो मीन टर्म्स कितनी हुई, 1 5 6 एंड 7। अब जैसे आगे करते थे सेम ही करना है, ए बी सी के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वी टू जस्ट राइट टेक ए बी एज ए S1 एंड S0 एंड सी एज ए एंटर्ड लेना है। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे सेम है, ए बी की वैल्यू तो एक सेक्शन में डिवाइड कर दो, 0 1 सेक्शन में डिवाइड करो, 1 0 सेक्शन में डिवाइड करो एंड 1 1 सेक्शन में डिवाइड करो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ, कहाँ कहाँ पे 1 है, 1 5 6 एंड 7। नाउ कंपेयर एफ एंड सी, 0 1 0 1, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एस लाइक सी, एफ इज इक्वल टू सी। नाउ सी की वैल्यू 0 तो एफ की वैल्यू भी 0, सी की वैल्यू 1 बट स्टिल एफ इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड सी, कि सी की वैल्यू कुछ भी हो एफ की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, दैट्स व्हाई एफ इज इक्वल टू 0। सेम ये दोनों यहाँ पे सेम है, सो एफ इज इक्वल टू सी। सेम यहाँ पे एफ की वैल्यू 1 है रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सी, सो एफ इज इक्वल टू 1। नाउ डिजाइन यूजिंग 4x1 जो आपको बोला था, सो इट इज C0 C1 C1 एंड C2, कहाँ पाएगा, D0 D1 D2 एंड D3, वो यहाँ पे दे दो। S0 S1 में क्या देना, ए बी एंड 4x1, ओके एंड यहाँ पे क्या आएगा F। तो ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है बट कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर होना चाहिए। आपको अगर 8x1 से बोला होता तो क्या होगा, D0 to D7 तक आएगा और F की वैल्यू जो यहाँ पे है वो डायरेक्टली आपको प्लेस करनी है। Okay. Any doubt in this multiplexer portion? Anyone? किसी को डाउट है मल्टीप्लेक्सर में, अदरवाइज हम डीमल्टीप्लेक्सर की तरफ मूव होते। हेलो, नो मैम। ओके
ओके, सो डी मल्टीप्लेक्सर, सो मल्टीप्लेक्सर का उल्टा मीन्स डी मल्टीप्लेक्स। अब इनपुट कितना होगा, एक ही होगा। ओके, एंड जितने भी इनपुट्स थे वो सारा आउटपुट हो जाएंगे। सो वन इनपुट इट इज डी एंड m numbers of output because it is a demultiplexer is a device that allow digital information from one source to be routed onto multiple lines of for transmission over different destination। मीन्स मैंने एक इनपुट दिया है, उसको मुझे मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करना है, सो वी कैन यूज डीमल्टीप्लेक्सर। कंसीडर इंटीजर m which is constrained by following relation, m is equal to क्या है, 2:n, both are integer। now m to 1 demultiplexer, one input है, m numbers of output है, तो one input means d, m output, so we can consider up to o output के लिए o दिया है m-1। अगेन कंट्रोल इनपुट्स वो कितने होंगे, सो S0, S1, S2, S-1, m and n है यहाँ पे देखो, तो क्या रिलेशन है m and n में, if 2 raised to n numbers of like in n means inputs है, तो m outputs है, means 8 output है, तो ऑफ कोर्स मुझे 3 सिलेक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट है। वहां पे उल्टा था, अगर 8 इनपुट्स है तो 3 सिलेक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आउटपुट 8 है तो 3 सिलेक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज एंड इट इज द नंबर्स ऑफ इनपुट्स एंड मींस सिलेक्शन इनपुट्स एंड एम इट इज द आउटपुट। ओके, एंड वन और मोर enable inputs as per your requirement such that D may transfer to one of its output depending upon the control input। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब साथ में नहीं जाएंगे। जैसे मल्टीप्लेक्सर में क्या था, 1 by 1 इनपुट सिलेक्ट हो रहा था एंड पास थ्रू योर सर्किट। इफ 0 0 तो फर्स्ट इनपुट सिलेक्ट होगा और सर्किट में पास होगा। सेम हियर, डिपेंड अपॉन सिलेक्शन लाइन, एट ए टाइम ओनली वन आउटपुट इज एक्टिव एंड गिव द इनपुट D। यहाँ पे देखो 1 cross 1 2 4 multiplexer, or you can just write 1 cross 4 demultiplexer also। 4 बोला आउटपुट था, हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन, 2, इनपुट कितना है 2, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब में D नहीं आएगा। एज पर द सिलेक्शन लाइन एनी वन आउटपुट गेटिंग द वैल्यू ऑफ D। सिलेक्शन लाइन जैसे 0 0 होगी तो सिर्फ D 0 एक्टिव होगा, सॉरी O 0 एक्टिव होगा, उसके बाद O1 होगा, उसके बाद O2 होगा, उसके बाद O3 होगा। तो इस तरह से डायगोनल में आएगी D की वैल्यू। देखो S की वैल्यू मैंने फर्स्ट केस में रखी है 0 0, सो O0 क्या होगा D, बाकी सारे इनएक्टिव रहेंगे आउटपुट्स। फिर 0 1 तो O1 D होगा, बाकी सब इनएक्टिव रहेंगे। फिर 1 0 सो O2 एक्टिव होगा एंड 1 1 सो O3 एक्टिव होगा। इट इज वेरी इजी, सिंपली D आपको ट्रांसफर करना है 1 by 1 स्टेप वाइज डायगोनल फॉर्म में। इसका आउटपुट आपको कंबाइन करके नहीं लिखना है, बिकॉज दिस आर द इंडिविजुअल टर्म्स लाइक दैट। ओके, O0, O1, O2 एंड O3 डीमल्टीप्लेक्सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेना कि O0 एक्चुअल में क्या होगा। लाइक O0 आपको क्या दिया है, O0 की वैल्यू, O0 क्या होगा, S1 डैश S0 डैश एंड क्या होगा D, किसके लिए, O0 के लिए। फिर O1 के लिए क्या आएगा, S1 डैश S0 D, O2 के लिए S1 S0 डैश D, उसके बाद S1 S0 एंड D। ओके, फॉर O3 के लिए तो O0 का सेपरेट होगा, O1 का सेपरेट होगा, O2 का सेपरेट होगा, O3 का सेपरेट नंबर्स ऑफ आउटपुट दिस वन। तो मुझे O0 को अलग से डिजाइन करना है, तो ओनली वन एंड गेट इज रिक्वायर्ड फॉर O0, सेम फॉर सेकंड एंड गेट इज रिक्वायर्ड फॉर O1, थर्ड फॉर O2 एंड फोर्थ फॉर O3। और जो भी इनपुट्स है वो सारे यहाँ पे देने हैं। देखो फर्स्ट क्या आ रहा है D, तो D कॉमन ले लिया है मैंने। कॉमन लेना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ पे से लाइन ही खींच लेनी है, इसीलिए लाइन खींचो तो यहाँ से डॉट करके खींचनी है, वो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन जैसे मैंने यहाँ पे ली D, उसके बाद क्या चाहिए था मुझे, S1 डैश, S1 डैश मतलब ये है तो ये लाइन यहाँ पे लेनी, फिर S0 डैश मतलब ये है तो ये एक लाइन यहाँ पे लेनी, देन ठीक है यहाँ पे हाँ S1 डैश, तो यहाँ पे तो 4 इनपुट्स आएंगे इसके, सॉरी 3 D 1 4 D 1 4 S 1 4 S1 एंड S0, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 इनपुट, सेम यहाँ पे 3 इनपुट, सेम यहाँ पे 3 इनपुट्स। जो भी यहाँ पे वेरिएबल दी है उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ से लाइन ले लेनी है।
तो स्टार्टिंग में जब आप डिजाइन करें ना पर्टिकुलर, तो डी एक ले लेना है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, फिर एक S1 ले लेना है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, उसका नोट गेट करके एक S1 डैश भी ले लेना है वर्टिकल लाइन करके, फिर S0, फिर S0 डैश, फिर जो भी वैल्यू चाहिए वो लाइन आपको यहाँ से खींच लेनी, बट इम्पोर्टेंट डॉट करके लेना, तभी वो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वैल्यू मैंने यहाँ से ली, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है देखो यहाँ पे इसीलिए। ओके, सो इट इज अ डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे उसका क्या आएगा, डी मल्टीप्लेक्स है, उसका ट्रूथ टेबल है एंड डायग्राम। ओके, सो डी मल्टीप्लेक्सर जैसे आपको अगर 1x8 का दिया है तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 सिलेक्शन लाइन एंड 8 नंबर्स ऑफ आउटपुट्स। सेम ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा अप टू 8 कॉम्बिनेशन के लिए, और यहाँ पे भी कितने गेट्स आएंगे, अप टू 8 एंड गेट्स आएंगे, O0 to O7। सिंपली सब एक्सटेंड ही होगा, अगर वो 1 to 8 है या फिर 1 to 16 है तो कॉम्बिनेशन सिंपली आपको इंक्रीज करना है, सिलेक्शन लाइन इंक्रीज होगी एंड आउटपुट भी इंक्रीज होगा। नाउ एनी डाउट अप टू दिस, otherwise we have to stop here. Any doubt in this multiplexer demultiplexer portion? No, ma'am. Okay, one another method of multiplexer is also there, but I think it is not covered in this. It is very easy for logic function generation, which I cover next time. Okay, anything else? Otherwise I just take the attendance.